Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Banking current affairs is the important part of general awareness paper. So on this channel, I have provided you various videos on banking current affair from July 2020 onwards. So there are various playlists on the channel: July 2020, August 2020, September 2020, October 2020. The link of all these playlists is available in description box. So watch these videos and prepare well for all main examinations. So today we will cover the banking current affair of 4 dates, that is October 21st, 22nd, 23rd and 24th. So first news is the finance minister says banks have covered 1.5 crore farmers under KCC, Kisan Credit Card. Sanction credit limit of 1.35 lakh crores. Second news is EPFO. New enrollment is 10.05 lakhs subscribers. It is a great number. Then FDI is up 16% to $27 billion in the period of April and August 2020. RBI governor says India is at doorstep of economy revival. So it's a good news. If economy revives, everything will automatically revive. The next is SBI announced concession in home loan up to 20 basis points. 1 basis point is 1/100th of 1. So if we say 1 basis point, that means 0.01%. So when we say 25 basis point, it means 0.25%. So next is SDFC reduces the fixed deposit rates. Next news is government employees to get bonus. Government to spend 2,791 crores. This year the announcement is delayed. But after the pressure of government employees, government has declared it. Another news is new series of CPI, industrial worker, launched by the government, and the base area is shifted from 2001 to 2016. Indian Bank profit rise by 15% to 412.28 crores. Similarly, the net profit of UCO Bank is 30.12 crore. Good performance. Another important news is bank credit is up by 5.66% and bank deposit is up by 10.5% on YOY basis. YOY means year on year. That means whatever was the figure last year on the similar date and what is the figure today on the similar date. So that is called year on year increase. Then you have to cover current affairs also. So for current affairs, I have identified a very good source for you. Link is available in description box as well as comment column. Subscribe this current affair link and start reading from monthly PDFs. Once you subscribe this current affair link, you get daily, weekly and monthly PDFs. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. बैंकिंग करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस में, और इसीलिए जुलाई 2020 से ये पहल की है इस चैनल पे कि हम बैंकिंग करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं. 4 प्लेलिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है. जुलाई 2020 की न्यूज़ की, अगस्त 2020 की न्यूज़ की, फिर सितंबर 2020 की न्यूज़ की और अक्टूबर 2020 की न्यूज़ की. सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं.
तो मैक्सिमम पॉसिबल वीडियोस आप डेली देख लीजिए ताकि ये न्यूज़ आपकी कवर हो जाए। इस महीने में थोड़ा सा हम इरेगुलर हो गए थे अक्टूबर के अंदर, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम चल रहे थे सितंबर अक्टूबर में। अब हमने वो डेट्स भी कवर कर लिया। आज हम 24 अक्टूबर तक पहुंच जाएंगे और कल हम एट पार आ जाएंगे, डेट के साथ आ जाएंगे। 27 अक्टूबर को 27 अक्टूबर पे आ जाएंगे। तो आज हम कवर करेंगे 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर की न्यूज़। तो पहली खबर है कि वित्त मंत्री ने कहा है कि बैंकों ने 1.5 करोड़ किसानों को केसीसी के अंतर्गत लोन दिया है और ये कुल राशि है 1,35,000 करोड़। दूसरी न्यूज़ है EPFO में 10.05 लाख नए सब्सक्राइबर्स की एनरोलमेंट हुई है। FDI 16% बढ़ के $27 बिलियन पे पहुंच गई है अप्रैल अगस्त 2020 में। रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है कि भारत इकोनॉमिक रिवाइवल की तरफ पहुंच गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन पर 25 बेसिस पॉइंट का कंसेशन ऑफर किया है। 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.01%। तो जब हम 25 बेसिस पॉइंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है 0.25%। तो कई बार पूछते हैं बेसिस पॉइंट क्या है, परसेंटेज टर्म्स में इसका क्या अर्थ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद है HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट के रेट घटा दिए हैं 22 अक्टूबर से। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को बोनस मिल गया है और सरकार ने टोटल जो बोनस दिया है वो है 2,791 करोड़ का। इस बार ये बोनस लेट मिला है, पर फिर भी एम्प्लॉइज़ ने ये अपनी मांग मनवा ली गवर्नमेंट से। नई सीरीज़ ऑफ CPI इंडस्ट्रियल वर्कर लॉन्च हो गया है। इसमें बेस ईयर 2001 से बढ़ाकर 2016 कर दिया गया। इंडियन बैंक का जो प्रॉफिट है 15% बढ़कर 412.28 करोड़ हो गया है। यूको बैंक ने भी प्रॉफिट अर्जित किया है 30.12 करोड़ का। बैंकों का जो लोन है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5.66% बढ़ा है। इसी प्रकार जो उसकी जमा राशियां हैं, डिपॉजिट्स हैं, वो भी YOY बेसिस पे 10.5% बढ़े हैं। तो YOY का मतलब होता है पिछले वर्ष जो आंकड़ा था इसी दिन और इस साल जो आंकड़ा है उसमें कितनी वृद्धि हुई है, इसको हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बोलते हैं। तो इस चैनल पे आपके लिए बैंकिंग करंट अफेयर का बहुत मटेरियल है, इसका एडवांटेज लीजिए। बैंकिंग नॉलेज की 190 से अधिक वीडियोस है, इसका फ़ायदा लीजिए। सब कुछ फ्री है, ये सिर्फ आपको देखना है और नॉलेजेबल बनना है। जो वीडियोस आप देखते जाएंगे नॉलेज बढ़ती जाएगी, आपको एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। करंट अफेयर के लिए भी मैंने आपको एक अच्छा सोर्स ढूंढ के दिया है, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और कमेंट में भी दे दिया है। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको डेली, वीकली और मंथली PDFs मिलेंगे और मंथली PDF से आप तैयारी करिए, आपके करंट अफेयर में भी अच्छे नंबर आएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।